Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about the ratio, how to find the ratio and how to use unitary method to solve the questions, right? And in today's session we are going to discuss the exercise 8.1. Okay, so let's start it. So question number 1 is find the ratio of first part you have given rupees 5 to 50 paise. Then B part is 15 kg to 210 gram and the C part is 9 meter to 27 centimeter and the last part D part is 30 days to 36 hours. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है. ठीक है, यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ आपको दे रखी हैं और उनके बीच में आपको रेशियो फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट है आपका, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपीज़ टू 50 पैसे. 5 रुपीज़ का 50 पैसे से कितना रेशियो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो निकालने से पहले हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी दे रखी है क्या उनकी यूनिट सेम है. यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 रुपीज़ है और 50 पैसे है, मीन्स 1 रुपीज़ में 1 पैसे में है. यूनिट्स आर डिफरेंट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू डू द सेम यूनिट. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी यूनिट्स को सेम करना है. तो देखिए, और जनरली मैंने लास्ट सेशन में आपसे बोला भी था कि जनरली हम क्या करते हैं, बिगर टू स्मॉलर यूनिट में इजी कैलकुलेशन रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर रुपीज़ क्या है, पैसे से बड़ा है. ओके, दिस रुपीज़ यूनिट इज़ बिगर देन पैसे. ओके, सो वी विल कन्वर्ट हियर दिस 5 रुपीज़ इंटू पैसे. Okay, so we know that 1 rupees equals to 100 paise. 1 rupees equals to 100 paise. Okay, so 5 rupees, 1 में 100 है तो 5 में कितने होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू जितना 1 में है उससे. ठीक है, मीन्स 5 इंटू 100, सो 500 पैसे. तो हमने क्या किया, रुपीज़ 5 को पैसे में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन रुपीज़ 5 एंड 50 पैसे. ओके, सो इफ वी want to remove this ratio, so it will be in the form of fraction, means rupees 5 upon 50 paise. Okay, and we know we have converted rupees 5 into 500 paise, so in place of rupees 5 we can write 500 paise. Okay, upon 50 paise. Okay, paise will be cancel out because these are numerator and denominator, means in divisional form, so they will be cancel out. Okay, so only we will left with numbers. So 500 upon 50. 500 upon 50, 1 0 to this 1 0. So we will left with 50 upon 5. 5 1 ja 5 and 5 10 ja 50, means 10 upon 1. So the ratio will be 10 is to 1. Okay, the ratio of rupees 5 to 50 paise is 10 is to 1. So this is how we calculate, we find out the ratio between two quantity. Okay, so this was your first part. Let's move to the second part. Now the second part is, here you have to find out the ratio between 15 kg and 210 gram. So as you can see here, the units are different. One is kg and second one is gram. So first we have to change the unit. So generally as we do, we will change kg into gram. So as we know that 1 kg is equals to 1000 gram. 1 kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 kg में कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 1000 मीन्स 15,000 ग्राम. ओके, तो हमने क्या किया, 15 kg को 15,000 ग्राम में चेंज कर दिया. अब यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर भी 200 ग्राम, यूनिट्स क्या है, सेम है.
then you can find easily the ratio. Okay, so 15 kg is to 210 gram will equal to 15 kg upon 210 gram. Okay, in place of 15 kg, as we have changed this kg into gram, so we can write 15 kg into gram, 15,000 gram upon 210 as it is. Okay, so gram will cancel out with this gram in denominator, so we will left only with numbers. In numerator 15,000 upon denominator is 210. Okay, so 1 0, this will cancel out with this, and remaining is 1500 divided by 21. Okay, now see, this 21 and 15 comes in the table of 3, so we will divide by 3 here. Okay, दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 3 5 जा 15 एंड 2 0 अपॉन 3 7 जा 21. ओके, नाउ देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन 500 एंड 7. ओके, 7 की टेबल में ऐसा तो नहीं है कि 7 आता हो और 50 भी आता हो. नो, सो देर इज नथिंग कॉमन हेयर. सो द रेशियो विल बी एज इट इज 500 is to 7. Okay, so the ratio of 15 kg to 210 gram is 500 is to 7. Okay, now next part is 9 meter to 27 centimeter. Okay, so here we have to find out the ratio between 9 meter to 27 centimeter. Here also the units are different. Okay, so first we have to change the unit. Okay, so generally as we do bigger to smaller, so here also we will change this 9 meter into centimeter. Okay, so we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay, 1 meter equals to 100 centimeter. So 9 meter will be 9 into 100. Okay, means 900 centimeter. So we have changed 9 meter into 900 centimeter. Now centimeter to centimeter units are same, so we can easily find out the ratio. So 9 meter is to 27 centimeter. What will be in place of 9 meter? We can write 900 centimeter. Okay, and the 27 centimeter will be as it is. 27 centimeter जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमने क्या 9 मीटर को चेंज किया. अब देखिए यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा के पास क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन नंबर्स मीन्स 900 अपॉन 27. ओके, वी नो दैट इन टेबल ऑफ 9 27 एंड 90 बोथ विल कम. ओके, सो वी विल डिवाइड इट बाई 9. सो 900 divided by 9 means 9 1 ja 9 and 2 0 upon 9 3 ja 27. So the ratio will be 100 is to 3. You can see in between 100 and 3 there is nothing common. Okay, so the lowest fraction will be this. So the ratio will be 100 is to 3. Okay, now see the D part. Here you have to find out the ratio between 30 days to 36 hours. Okay, days and hours units क्या है, डिफरेंट है, तो पहले हमें क्या चेंज करना है यूनिट्स को, बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर. इट्स योर विश. ओके, सो 30 days, so here we will convert days into hours. Okay, so as we know that 1 day is equals to 24 hours. Okay, 24 hours. So 30 days will be 30 into 24 hours. Okay, 1 day में कितने 24 hours होते हैं, तो 30 days में कितने hours होंगे, 30 into this 24. So 24 3 जा 72 means and this 0 720 hours in 30 days.
Okay, so we have changed this 30 days into hours. Okay, so now find the ratio. So 30 days is to 36 hours. Okay, so 30 days upon 36 hours. So in place of 30 days we can write 720 hours upon 36 hours as it is. Okay, so see 36 2 ja 72, so it will be cancel out 2 times and this 0. So 20 upon 36 1 ja, so in denominator there will be 1. Hours will be cancelled out with this hours in denominator. So यहाँ remaining क्या है आपका, क्या आ रहा है 20 upon 1. So ratio will be 20:1. Okay, so the ratio between 30 days and 36 hour is 20:1. Okay, so this is how we calculate the ratio. Now let's move to the question number 2. Now question number 2 is, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्या दिया गया है कि एक कंप्यूटर लैब में एवरी 6 मतलब हर 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल है, 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल है. मीन्स पर 6 स्टूडेंट देर आर 3 कंप्यूटर्स. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. तो इसी तरीके से पहले 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जब भी हमें कुछ गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्या कि 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में कितना कंप्यूटर आएगा वो हम कैलकुलेट करें. उसके बाद जब हमें 1 का पता चल जाएगा तो हम 24 दैट इज़ मोर देन 1 24 स्टूडेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, यूनिटरी मेथड. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, for 6 students, number of computer is 3. 6 स्टूडेंट्स के लिए कितना कंप्यूटर है, 3. तो 1 स्टूडेंट के लिए, for 1 student number of computer will be how many, means this 3 divided by 6. 1 के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे. तो क्या आ जाएगा आपका, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 means 1/2. ओके, for 6 students number of computers available is 3. So for 1 student the number of computer will be 3/6, that is equal to half. Okay, now we have to calculate for 24 students number of computers. Okay, so for 24 students number of computers will be 1 के लिए कितना है, हाफ. तो 24 के लिए कितना होगा, हाफ इंटू 24. जब हमें 1 का पता चल जाए और मोर देन 1 का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 के लिए कितना कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर हाफ, दैट विल मल्टीप्लाइड बाय 24 स्टूडेंट्स. सो 2 1 जा 2 एंड दिस 24, और वी कैन से 24 इंटू 1 इज 24 upon this 2 means 12. So for 24 students there will be 12 computers. Okay,
For 6 students, there are 3 computers. So for 1 student, there will be half computer. Then 24 students, there will be 12 computers. Okay, so here we have used unitary method. In such type of questions, we always use unitary method. Okay, so let's move to the question number 3. So question number 3 is, population of Rajasthan is 570 lakhs and the population of UP is 1660 lakhs. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP you have given 2 lakh kilometer square. Okay, so the first part which you have to find out here, how many people are there per kilometer square in both states, and the second part is which state is less populated. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 lakhs. Okay, and you also have given the area of these two states. राजस्थान का एरिया आपको दे रखा है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखी है और आपको उन स्टेट्स का एरिया भी दे रखा है. अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स. मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने पीपल होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं राजस्थान में? 570 लाख. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने रहेंगे? हम क्या करेंगे, इस 570 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर देंगे. ओके, व्हाट, सी द फर्स्ट पार्ट. Population of Rajasthan in 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर एरिया. राजस्थान की पॉपुलेशन इस एरिया में कितनी है? 570 लाख. ओके, आपको राजस्थान का एरिया दे रखा है कि इस स्टेट का एरिया कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. अब इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? पॉपुलेशन क्या है राजस्थान की? 570 लाख. ओके, सो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ राजस्थान इज 570 lakh. Okay, now we have to find in 1 kilometer square area how many people live. Okay, so see, so population of Rajasthan in 1 kilometer square area. Kilometer square is the unit of area. Okay, तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं राजस्थान में? 570 लाख. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहेंगे? यहाँ पर हम 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिवीज़न करेंगे. किसका? 570 अपॉन दिस 3 लाख. 570 लैक्स अपॉन 3 लैक्स. ओके, 1 किलोमीटर एरिया में हम निकाल रहे हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहेंगे. तो 570 लाख को हमें किससे? 3 लाख से डिवाइड करना है. मीन्स एरिया ऑफ राजस्थान डिवाइड बाई द पॉपुलेशन इन दैट एरिया. ओके, सो लाख विल बी कैंसल आउट. लाख. ओके, सो वी विल लेफ्ट विद ओनली 570 अपॉन 3. So if we divide by these two, numerator and denominator by 3, means 570 divided by 3 upon 3 divided by 3. So we will 19 3 ja 57. It means 190
अपॉन 1 मीन्स 190. ओके, तो क्या निकल के आ रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में राजस्थान में कितने लोग रहते हैं? 190. मीन्स पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज 190. और यू कैन से द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया is 190. Okay, so there are 190 people in 1 kilometer square area of Rajasthan. Okay, now we have to calculate in UP also. So population of UP in UP का एरिया कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर. So in 2 lakh kilometer square is how many? 1660 lakhs. ओके, जहाँ राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने 570 लाख रह रहे थे, वहीं यूपी जो कि क्या है राजस्थान से एरिया वाइज छोटा है, इसका एरिया 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो यूपी का कितना दे रखा है आपको 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया यूपी का एरिया छोटा हुआ. तो इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, क्या पॉपुलेशन है? 1660 लाख. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया और ऑफ यूपी ऑल्सो. सो पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया विल बी दिस 1660 lakhs upon 2 lakhs. ओके, हमने क्या किया? टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया. ओके, सो lakh will be cancel out. So numbers in numerator is 1660 and in denominator is 2. So if we divide 1660 by 2, so we will get 830. 2 8s are 16 and 2 3s are 6, then 0. 830. Okay, so in UP in 1 kilometer square area there are 830 people. Okay, यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 830. वहीं राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 190. सो विच वन इज लेस पॉपुलेटेड? किस में कम लोग रहते हैं? सो ऑब्वियसली राजस्थान में. ओके, हमने क्या किया? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो कैलकुलेट किया और उसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया कि कौन लेस पॉपुलेटेड है. ठीक है, तो राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने 190 पीपल रह रहे हैं और वहीं यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 830 पीपल रह रहे हैं. सो 830 इज ग्रेटर देन 190. सो द स्टेट विच इज़ लेस पॉपुलेटेड इज राजस्थान. ओके, सो द सेकेंड पार्ट इज राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड. लेस पॉपुलेटेड का क्या मतलब है कि किसकी कम जनसंख्या है या किस में कम लोग रह रहे हैं. ठीक है, पॉपुलेशन किसकी कम है? तो राजस्थान की कम हुई क्योंकि वहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ओनली 190 पीपल आर लिविंग. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3rd. So that's all for today's session in which we have discussed 3 questions of exercise 8.1. Right? If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we will discuss the percentage, how to convert the percentage in fraction and decimal and vice versa. Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.